کچھ لوگ میوٹنٹس ہوتے ہیں، کچھ لوگ سپر پاورڈ بینگز ہوتے ہیں، کچھ لوگ گاڈز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ میجک کا استعمال کر کے اپنی شکتیوں کو حاصل کرتے ہیں اور موسٹ پاورفل انسان بن جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ صرف انسان ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی پاورز یا شکتیاں نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ان چاروں لوگوں کے اوپر آرام سے بھاری پڑ سکتے ہیں۔ تو آپ کا سوال یہ ہوگا کہ وہ لوگ یہ سب کیسے کر لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب بہت زیادہ سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک پاورفل ویپن ہوتا ہے۔ ایک پاورفل ویپن کے ذریعے وہ ان سارے کے سارے شخصیتوں کے اوپر آرام سے بھاری پڑ سکتے ہیں۔ یہی تو خاص بات ہے ایک ویپن کی۔ ایک ویپن ایک شیلڈ سے لے کے ایک ہیرو کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ویپن ایک گاڈ کو مہان بنا دیتا ہے اور اس کی پہچان بنا دیتا ہے، اور یہی ویپن ایک عام آدمی کو گاڈ کے مقابلے کا بنا دیتا ہے۔ سو گائز، دس از پیٹ ٹائگر، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں کہ مارول کامکس کے اندر موسٹ پاورفل ویپنز کون کون سے ہیں۔ لیکن آج کے اس لسٹ کے اندر میں نے کچھ چیزوں کو جو ہے اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیا ہے، جس میں انفینٹی سٹونز اور کاسمک کیوب شامل ہیں۔ آپ نے کہیں پہ بھی اگر پاورفل ویپن کی لسٹ پڑھی ہوگی تو میں جانتا ہوں کہ آپ نے ان دونوں کا مینشن کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا، لیکن میری نظر میں یہ دونوں چیزیں ویپنز نہیں بلکہ آرٹ ایفیکٹس ہیں، جن کے اوپر میں فیوچر میں چل کے ایک اور ویڈیو بناؤں گا۔ چلیے بنا کسی اور بات کے ہم اپنی اس اوسم لسٹ کی شروعات کرتے ہیں۔ سو گائز، بنا کسی اور بات کے ہم فوراً سے اپنی اس ٹاپ 10 لسٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 10، وولورینز کلو۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ وولورین سے کلو جو ہے پورے کے پورے مارول یونیورس کے اندر ایک جو ہے ٹریڈ مارک چیز بن کے رہ گئی ہے۔ مطلب یہ کلوز ہمیں کہیں پہ بھی نظر آئے تو ہم اس کو فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ وولورین کے کلوز ہیں۔ یہاں تک کہ جب میں کبھی چھوٹا ہوا کرتا تھا تو میں صرف کلوز دیکھ کے ہی ایکس مین کا نام لیا کرتا تھا۔ مجھے ایکس مین کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ ایکس مین دراصل ایک الگ ٹیم ہے، بلکہ میں اس کے کلوز کو وولورین کو دیکھ کے ہی ایکس مین سمجھتا تھا۔ تو وولورین کے جو کلوز ہیں وہ ایک بہت ہی زیادہ ٹریڈ مارک چیز بن کے رہ گئی ہے کامکس کے اندر۔ اور اس لسٹ کے اندر کچھ ویپنز ایسے ہیں جن کو میں نے ان کی پاور کے بیس کے اوپر نہیں بلکہ ان کے کریکٹرسٹک اور ان کی مشہور ہونے کے بیس پہ میں نے یہاں رکھا ہے لسٹ کے اندر، اور وولورین کے کلوز ان میں سے ہی ایک ہیں۔ نک فیوری نے ایک بار کہا تھا کہ وولورین کے کلوز جو ہیں ایک وہ پرفیکٹ اسٹیلتھ ویپن ہے، کیونکہ وہ ٹھیک اس کے اندر ہی موجود ہے، وہ جہاں چاہے اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اور وہ چاہے تو ایک انسان کی گردن ایک ہی جھٹکے میں الگ کر سکتا ہے، وہ بھی صرف اپنے ہاتھوں کے ہی ذریعے۔ اور لوگن کے یہ کلوز جو ہیں یہ ایک زبردست قسم کے انڈسٹرکٹیبل میٹل سے بنے ہوئے ہیں جس کو ایڈامینٹیم کہا جاتا ہے۔ مارول یونیورس کے اندر یہ ایک فکشنل میٹل ہے دراصل، اور یہ اس کو اتنا زیادہ اسٹرانگ بتایا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وولورین کے پاس صرف کلوز نہیں بلکہ اس کا پورا اسکیلیٹن جو ہے وہ ایک ایڈامینٹیم کے اندر کوٹ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک خطرناک قسم کی کلنگ مشین بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ صرف وولورین کے کلوز ہی ایک خطرناک قسم کا ویپن نہیں بلکہ وولورین اس کے ساتھ مل کے اس کو بہت زیادہ اوسم اور زبردست لیول پہ لے جاتا ہے۔ نمبر 9، کیپٹن امریکاز شیلڈ۔ تو کیپٹن امریکہ کی شیلڈ کے بارے میں آپ میں سے بچہ بھی جانتا ہوگا، اور اب جیسے کہ فالکن اینڈ دی ونٹر سولجر چل ہی رہا ہے ہمارے پاس تو آپ اس کے بارے میں اور اچھے طریقے سے جان ہی رہے ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دراصل کامکس کے اندر دو زبردست قسم کے میٹلز کو ملا کے بنی ہے، جس میں سے وائبرینیم اور ایک ایڈامینٹیم ہے۔ یہ وہی ایڈامینٹیم ہے جس کا ذکر ابھی ہم نے کچھ ٹائم پہلے وولورین کے کلوز میں کیا تھا، تو یہ ایڈامینٹیم کیپٹن کی شیلڈ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور آپ سوچیں گے کہ وولورین کے کلوز سے ہم نے شیلڈ کو اوپر کیوں رکھا ہے، تو دراصل کیپٹن امریکہ کی شیلڈ کی خاصیت یہ ہے وہ ایک انڈسٹرکٹیبل شیلڈ نہیں بلکہ اس کے علاوہ وہ ایک ایسی شیلڈ ہے جو کہ ہر طرح کی وائبریشن اور فریکوینسیز کو اپنے اندر ایبزارب کر سکتی ہے۔ مطلب اس کے اوپر کسی بھی قسم کے امپیکٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو وائبرینیم میٹل ہے وہ ساری کی ساری وائبریشنز کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے۔ ہینس جو اس شیلڈ کو اٹھا رہا ہوتا ہے اس کو کسی بھی قسم کا امپیکٹ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس لسٹ میں اس کو اوپر رکھنے کی وجہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ وولورین کے کلوز کی طرح اس کو استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسٹیو راجرز نے اس کو کافی سالوں تک چلانے کے بعد ہی ماسٹر کر پائے ہیں، اور کوئی دوسرا ان کی جگہ نہیں لے سکتا اس شیلڈ کو چلانے کے لیے، کیونکہ اسٹیو راجرز صرف اس شیلڈ کو کہیں پہ پھینکتے نہیں ہیں کسی کو مارنے کے لیے، بلکہ وہ اس طرح سے اس کو پھینکتے ہیں کہ تاکہ وہ واپسی لوٹ کے ان کے پاس آ سکے، اور اسی وجہ سے اس ویپن کو ہینڈل کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس طرح کے آئیکونک ویپن کو میں اپنی لسٹ میں سے ایکسکلوڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس سے زیادہ پاورفل ویپنز ہماری لسٹ میں شامل ہو سکتے تھے، لیکن کیپٹن امریکہ کی شیلڈ کی بات وہ کچھ اور ہی ہے۔ نمبر 8، جان بانڈ۔ اب یہ نام تھوڑا سا لینے میں تھوڑا سا عجیب سا ہے، لیکن اس کے نام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے ایک نارس میتھولوجی سے آیا ہے ویپن، اور یہ ویپن کسی اور کا نہیں بلکہ مائٹی گاڈ تھور کا ہے۔ اور یہ ویپن تھور تب استعمال کیا کرتا تھا جب وہ میونیر کے جو ہے وردی نہیں ہوا تھا، جب وہ میونیر کو اٹھا نہیں پاتا تھا تو وہ اپنے ینگر ایج کے اندر اسی کا استعمال کیا کرتا تھا، اسی ایکس کا، اور یہ ایکس بھی اس کا جو ہے اسی اورو میٹل سے بنا ہوا ہے جس سے تھور کا ہیمر میونیر بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر تھور کا اپنا خون بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے اس ویپن کو جو ہے ایک الگ ہی قسم کی ڈیوریبلٹی ملتی ہے۔ یہ تھور کے حساب سے اس کا سب سے زیادہ ریلائبل ویپن ہے، اور یہ چیز اتنی زیادہ کیپیبل ہے کہ یہ ایک سیلیسٹیل بینگ تک کو مار سکتی ہے۔ جان بانڈ جو ہے مارول کامکس کے اندر اپنی شارپنس کے لیے فیمس ہے۔ اس کی
शार्पनेस इतनी है कि वो सेलेस्टियल आर्मर को भी जो है चीर सकती है। और सेलेस्टियल्स अगर आपको नहीं पता है तो मार्वल कॉमिक्स में आप एक तरह के उनको गॉड समझ सकते हैं इन शॉर्ट। थॉर का ये बैटल एक्स जो है उसने इसका बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और जब थॉर कॉमिक्स के अंदर अनवर्दी हो गया था, जब वो म्योनियर नहीं उठा पा रहा था, तो तब उसने जान बॉन्ड का ही इस्तेमाल करा था। क्योंकि थॉर का और इसका साथ बहुत ज़्यादा पुराना है, तो ये सिर्फ थॉर के हाथ में ही बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से चल पाता है। और इसके पास एक और खूबी है, जिस तरह थॉर के हैमर म्योनियर के पास है, कि जब भी थॉर उसको वापसी बुलाना चाहे तो ये लौट के वापसी उसी के पास आता है जिसने इसको फेंका होता है। नंबर 7, नोवास हेलमेट। नोवा के बारे में तो आप सबने सुना होगा, वो कॉस्मिक सुपर हीरो जिसने पूरी की पूरी एनहाइलेशन वेव को खत्म कर दिया था। उसने एनहाइलस जैसे खतरनाक किस्म के विलन के अंदर हाथ डाल के उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल के उसको जान से मार डाला था। और इस तरह के नोवा ने बहुत ज़्यादा उधम मचा रखी है पूरे के पूरे स्पेस के अंदर, जिस वजह से हम उसका बेसब्री से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार एक लॉन्ग आइलैंड का लड़का जो कि स्पेस के अंदर जाके इतना ज़्यादा पावरफुल बनी है, वो कैसे बना? तो ये सब वो हासिल कर पाया है इस नोवा हेलमेट के जरिए। नोवा हेलमेट दरअसल जो है एक जेंडारियन टेक्नोलॉजी है, जो कि उनकी दरअसल एक पुलिस फोर्स है जो कि स्पेस के अंदर काम करती है। नोवा हेलमेट की वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं। उसको पहनने के बाद ही उसके पास एक नोवा फोर्स का पूरा एक्सेस आ जाता है, और सबके जरिए वो किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है, वो स्पेस के अंदर ब्रीथ कर सकता है, वो अंडर वाटर रह सकता है, उसके सामने एक होलोग्राम डिस्प्ले आ जाता है, वो जो है एक सुपर नोवा की स्पीड से जो है ट्रैवल कर सकता है, उसका दिमाग हर तरह की इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, वो मल्टीटास्किंग तेज करने लगता है, उसके पास फ्लाइट की पावर, एनर्जी ब्लास्ट, टेलीकिनेसिस, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और इस तरह की बहुत सारी एबिलिटीज सिर्फ इस हेलमेट की पहनने की वजह से आ जाती हैं। तो मैं आपको बताना चलूँ कि इनहाइलेशन का जब इवेंट हुआ था तो उसके अंदर हमने देखा था कि सारे के सारे नोवा फोर्स के लोग मारे जाते हैं एक पूरी की पूरी इनहाइलेशन वेव के बीच में, लेकिन तब सिर्फ अकलौता रिचर्ड राइडर बचता है जो कि अकलौता नोवा फोर्स को हासिल कर रहा होता है। और नोवा फोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने ज़्यादा कम लोग होंगे उतनी ज़्यादा उनके पास नोवा फोर्स का एक्सेस होगा। तो अगर हम इस फॉर्म में नोवा की बात करें तो वो मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीरो बन सकता है। नंबर 6, हरक्यूलिस मेस। तो जिस तरह के हर हीरो का एक ट्रेडमार्क वेपन होता है, जिस तरह कैप्टन की शील्ड, वुल्वरीन के क्लॉस और थॉर का हैमर, इसी तरह मार्वल कॉमिक्स के अंदर हरक्यूलिस की भी एक ट्रेडमार्क वेपन दी गई है, और वो उसका एक मेस है जो कि दरअसल एक ज़बरदस्त किस्म के मेटल से बना है जिसका नाम एडामेंटाइन बताया जा रहा है। अब एडामेंटियम और एडामेंटाइन मेरे जहाँ तक अंदाजा है वो दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर उसको एडामेंटाइन कहा जाता है, और ये वेपन उसका किसी और ने नहीं बल्कि ग्रीक गॉड की सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त ब्लैक सुमित, जिसने सारे के सारे गॉड्स के वेपन्स बनाए हैं ओलंपस के अंदर, उसी ने बनाया है, जिसका नाम हेफेस्टियस है। हरक्यूलिस का ये मेज जो है बिल्कुल थॉर के हैमर म्योनियर के बिल्कुल बराबर का है, और हम काफ़ी बार कॉमिक्स में म्योनियर और उसको आपस में टकराते हुए देख चुके हैं, और तब भी इसके ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं आया था। वो अलग बात है कि इस वेपन के पास अपनी कोई स्पेशल पावर्स नहीं है जिस तरह थॉर के हैमर के पास मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत ही एक्सट्रीमली टफ और रोबस्ट मटेरियल से बना हुआ है, और इसके सामने हर एक चीज़ चकनाचूर होकर रह जाती है। और हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि हरक्यूलिस जो कि गॉड ऑफ स्ट्रेंथ माना जाता है, उसकी स्ट्रेंथ के आगे कोई वेपन अगर टिक जाए तो वो कहीं से भी हल्का नहीं हो सकता है। और हम इस हरक्यूलिस की मेस को ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देख चुके हैं, जब थॉर रैग्नारॉक के अंदर थॉर जो है वहाँ पे हल्क से फाइट करने के लिए अरीना में उतरता है, तो जो वेपन उस वक्त उसके हाथ में मौजूद होता है वो बिल्कुल हरक्यूलिस की मेस के जैसा ही है। तो मे बी पॉसिबल कि वो हरक्यूलिस का ही वेपन हो और वो कभी इस प्लेनेट पे लड़के गया हो। नंबर 5, म्योनियर। तो थॉर का हैमर म्योनियर, इसके बारे में हम जितनी तारीफें करें और जितना मैं आपको बताना चाहूँ उतना ही कम है। ये ओवर द डेकेड्स ये वेपन सिर्फ अब एक वेपन नहीं रहा है बल्कि एक निशान बन के रह गया है। ये एक ऐसी चीज़ बन के रह गई है जब इसको हम टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि ये हैमर है इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और इंडिस्ट्रक्टेबल कि इसको आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। इसके ऊपर ओडिन ने एक मैजिकल प्रोटेक्शन भी डाली हुई है जिसकी वजह से सिर्फ वही शख्स इसको उठा सकता है जो कि वर्दी हो, और इसकी जो एन्चेंटमेंट है वो कुछ इस तरह से रीड करती है, हूएवर होल्ड्स दिस हैमर इफ ही बी वर्दी शैल पोजेस द पावर ऑफ थॉर। तो उसका मतलब ये है कि अगर वो शख्स वर्दी है इस हैमर को उठाने के, तो जब वो इस हैमर को उठाएगा तो उसके पास सिर्फ ये हैमर की पावर्स नहीं बल्कि साथ में थॉर की शक्तियां भी उसके पास आ जाएंगी, और इन पावर्स के अंदर इंक्लूड करती हैं वेदर कंट्रोल, सुपर स्ट्रेंथ, इनवॉल्नेबिलिटी और अपेरेंटली एसगार्डियंस की तरह बोलना। क्योंकि हम कॉमिक्स में कुछ ऐसा ही देखते हैं कि जब भी कोई हैमर उठाता है तो उसका एक्सेंट चेंज हो जाता है। अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थॉर के अलावा इस हैमर को उठा चुके हैं, और उस हैमर को उठाने के बाद उनके पास एक गजब की शक्ति आ जाती है। लेकिन जो भी हो इन दी एंड ये हैमर जो है सिर्फ थॉर के ऊपर ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो उसको एक ज़बरदस्त किस्म की गॉडली पावर्स देता है जो कि उसके पास पहले से मौजूद है, लेकिन वो उनको इन्हेंस ज़रूर करता है। थॉर और म्योनियर का साथ ऐसा है जैसा लैला और मजनू का, थॉर हैमर के बगैर नहीं रह सकता और वो हैमर भी थॉर के बगैर नहीं रह सकता है।
तो इसलिए म्योनियर का जिक्र अगर हम इस लिस्ट में ना करते तो इस लिस्ट को बनाने का कोई फायदा ही नहीं था। नंबर 4, आयरन मैन आर्मर। तो अब मेरी बात आपको वो सच होते हुए दिखेगी जो मैंने अपने इंट्रो के अंदर कही थी कि कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ एक आम इंसान होते हैं, लेकिन वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे वेपन्स को बना लेते हैं कि वो गॉड से मुकाबला करने के काबिल हो जाते हैं। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हमने सारे के सारे गॉडली वेपन्स का जिक्र करने के बाद एक आयरन मैन आर्मर का जिक्र करा है। तो आयरन मैन आर्मर कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक जबरदस्त किस्म का आर्मर है जो कि टोनी स्टार्क को एक ऐसा वेपन देता है जो किसी से भी मुकाबला करने के काबिल है। और इस सब का पूरा क्रेडिट टोनी स्टार्क के अपने दिमाग को जाता है। उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके अपने वेपन्स को इस तरह से इवॉल्व करा है कि उसके सामने जिस तरह की मुसीबत खड़ी हुई थी वो उसको उस हिसाब से ढल लेता है। अगर हम बात करें ब्रायन माइकल बेंडिस की इनविंसिबल आयरन मैन की रन की, तो उसके अंदर हमने देखा था कि टोनी एक अपना जबरदस्त किस्म का आर्मर बनाता है जो कि हर चीज के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। आई मीन टू से अगर उसको हल्क से फाइट करनी है तो वही उसका आर्मर जो है वो हल्क बस्टर के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर उसको एक खुफिया मिशन पे जाना है तो वही आर्मर उसका कैमो आर्मर बन जाएगा और वो स्टेल्थ में चले जाएगा। अगर उसको किसी सोमोराई से लड़ना है तो उसके पास उसके सारे के सारे मूव्स पहले से ही स्टोर हैं। टोनी स्टार्क के आर्मर्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसके ऊपर हम आराम से 5-6 वीडियो तो बना ही सकते हैं। लेकिन टोनी स्टार्क के आर्मर को लिस्ट में हमने इतना पर इसीलिए रखा है क्योंकि टोनी स्टार्क ने अपने जबरदस्त किस्म के और भी आर्मर्स बनाए हैं। उसने गॉड बस्टर आर्मर तक बनाया है जो कि सेलेस्टियल से मुकाबला करने के काबिल है। और यही नहीं, हमने देखा था अभी रिसेंटली किंग इन ब्लैक के अंदर कि आयरन मैन अपने आर्मर का इस्तेमाल करके नल की फोर्सेस के ऊपर काबू पा लेता है। उसके खतरनाक किस्म के ग्रेंडल ड्रैगन्स को वो अपने वश में कर लेता है सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो आयरन मैन का आर्मर इस लिस्ट में ऊपर रखने की यही वजह है कि आयरन मैन के सामने कोई भी चुनौती क्यों ना हो, वो अपने आर्मर को इस तरह से प्रिपेयर कर ही लेगा कुछ ना कुछ करके कि वो उससे मुकाबला कर सके। नंबर 3, ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड। अब ये एक ऐसा वेपन है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बहस वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर मानेंगे कि ये वेपन वो है जो कि इस यूनिवर्स के अंदर सबसे पहले बनाया गया था। मतलब इस वेपन का क्रिएटर कोई और नहीं बल्कि नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट है, जो कि तब से मौजूद है जब ये यूनिवर्स भी नहीं बनी थी। और जब ये यूनिवर्स बनी और इसके अंदर सेलेस्टियल्स ने अपनी दुनियाओं को जो है आबाद करना शुरू करा तो वो चीज़ नल को बहुत बुरी लगी, क्योंकि नल एक अंधेरे के अंदर रह रहा था और उसके सामने रोशनी आना शुरू हो गई। तो उन सेलेस्टियल से लड़ने के लिए उसने ऑल ब्लैक द नेक्रो सॉर्ड बनाई। और ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की सॉर्ड थी कि उसने सेलेस्टियल से मुकाबला करके उनके सर उनके धड़ से अलग कर दिए। इस वेपन के जरिए उसने पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर तहलका मचा के रख दिया था। और यही वेपन बाद में जाके थॉर के सबसे खतरनाक विलन गॉर के हाथ लगता है और इसी वेपन के जरिए वो पूरे के पूरे गॉड्स के पैंथियंस को खत्म कर देता है। वो गॉड्स के खून की नदियां बहा देता है सिर्फ इस वेपन का इस्तेमाल करके। और इसी वेपन का इस्तेमाल करके गॉड जो है वो थॉर के 3 वर्जन से एक साथ लड़ने के काबिल भी बना था। अगर हम फ्यूचर टाइमलाइन की बात करें तो ऑल ब्लैक इतना ज़्यादा खतरनाक किस्म का वेपन है कि उसने गैलेक्टस और ईगो द लिविंग प्लेनेट जैसे लोगों को भी मार गिराया है। और गैलेक्टस जैसा इंसान भी वो इस वेपन के आगे टिक नहीं पाया और वो भी इससे डर रहा था। नंबर 2, वेनम्स बैटल एक्स। तो ये वेपन एक बहुत ही ज़्यादा रीसेंट वेपन है जो कि हमने तकरीबन पिछले 2 हफ्ते पहले ही अपने किंग इन ब्लैक के इशू नंबर 5 के अंदर देखा। जैसा कि हम ऑल ब्लैक का जिक्र कर ही चुके हैं, तो जब ऑल ब्लैक को लेके नल हमारी अर्थ के ऊपर उसको इन्वेड करने के लिए आया तो उसके सामने हर एक सुपर हीरो को फीका पड़ गया था। चाहे वो फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स, एक्स-मैन, थॉर, सेंट्री ही क्यों ना हो, वो सब उसके आगे नहीं टिक पा रहे थे। लेकिन तभी एडी ब्रॉक, जिसके पास इस वक्त एनिग्मा फोर्स मौजूद थी, वो अपनी ज़बरदस्त किस्म की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए थॉर के हैमर म्योनियर और सिल्वर सर्फर की सर्फ बोर्ड को जो है एक साथ मिला के एक नया ही वेपन बनाता है जो कि दिखने में उसके बिल्कुल सिम्बियोट के निशान जैसा था और वो ग्लो कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि जिस वेपन के अंदर थॉर का हैमर म्योनियर और सिल्वर सर्फर की बोर्ड दोनों एक साथ मौजूद हो तो वेपन क्या ही गजब मचाएगा। और बिल्कुल होता भी ऐसा ही है। ये वेपन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि ये ऑल ब्लैक नेक्रो सॉर्ड को जो है सही का मुकाबला दे पाता है। और यहाँ तक कि इस वेपन के जरिए वो नल का सीना चीर के उसका काम तमाम भी कर देता है। और इससे पहले अब तक का कोई भी वेपन जो था नल के ऊपर कोई असर नहीं डाल पाया था। हाँ, हम मानते हैं कि थॉर के हैमर ने उसका मुंह ज़रूर तोड़ दिया था, लेकिन उसको कोई ऐसा फैटल ब्लो नहीं दिया गया था किसी भी वेपन के जरिए कि वो ढीला पड़ जाए। लेकिन जब वैनम ने अपना बैटल एक्स इस्तेमाल करा उसके ऊपर तो नल का काम तमाम हो गया। तो इसके अंदर तो कोई बहस बची नहीं है कि वैनम के बैटल एक्स को मैंने लिस्ट के अंदर इतना ऊपर क्यों रखा है। सो गाइस, नंबर 1 पे जाने से पहले मैं कुछ और वेपन्स के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो कि हमारी इस लिस्ट में शामिल हो सकते थे, लेकिन जैसा कि आपको पता कि ये लिस्ट हमारी बहुत ज़्यादा टाइट है तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं इंक्लूड ना हो पाए। तो इसमें सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा नेगा बैंड्स का। अब नेगा बैंड्स जो हैं क्री के बनाए हुए बैंड्स हैं जो कि अपने सुपर हीरोज़ को शक्तियाँ देते हैं। इनको बहुत ज़्यादा यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको सबसे पहले कैप्टन मार्वेल ने इस्तेमाल करा था, उसके बाद नोवार ने भी इनको इस्तेमाल किया है। एक्सकैलिबर सॉर्ड भी एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की सॉर्ड है जो कि अपने यूजर्स को एक ज़बरदस्त किस्म के रूप के अंदर बदल देती है। और ये सॉर्ड इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि ये हर तरह के बैरियर को चीर सकती है, चाहे वो मैजिकल हो या पावर से क्यों ना बना हुआ हो। और यहाँ तक कि ये हर तरह के मैजिक को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकती है और यूज़र को बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी भी देती है।
डिस्ट्रॉयर आर्मर। तो इस गार्डियन आर्मरी के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक वेपन माना जाता है वो डिस्ट्रॉयर आर्मर माना जाता है, जिसको खुद ओडिन, ज़्यूस और विष्णु ने मिलकर बनाया था ताकि वो सेलेस्टियल से मुकाबला कर सकें। तो ये वेपन भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म का वेपन है जिसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। नंबर 1, द अल्टीमेट नलीफायर। तो अल्टीमेट नलीफायर एक ऐसा वेपन है जो कि हमने कॉमिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा कम देखा है और उसकी सही शक्तियों के बारे में हमें आज तक नहीं पता है। अल्टीमेट नलीफायर को कॉमिक्स में डिस्क्राइब किया जाता है एज द यूनिवर्स मोस्ट डेवेस्टेटिंग वेपन, और ये इतना ज़्यादा खतरनाक किस्म का वेपन है कि गैलेक्टस के भी इसके सामने हवा निकल जाती है। इसको सबसे पहले हमने फैंटास्टिक 4 के इशू नंबर 50 के अंदर देखा था, जब गैलेक्टस अर्थ के ऊपर उसको कंज्यूम करने के लिए आता है। जब फैंटास्टिक फोर्स को नहीं रोक पा रहे थे तो वॉचर की मदद से उन लोगों ने अल्टीमेट नलीफायर ला के गैलेक्टस के सामने रख दिया था और मिस्टर फैंटास्टिक ने उसको धमकी दी थी कि वो उसको मार डालेंगे, और हमने देखा था कि गैलेक्टस ने अल्टीमेट नलीफायर को देख के वो पीछे हट गया था। अल्टीमेट नलीफायर की जो एबिलिटी है वो दरअसल ये है कि उसके सामने जो कोई भी टारगेट होगा वो उसको एलिमिनेट कर देगी। मेरा मतलब जो कोई भी, चाहे वो कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, बस जो इंसान इसको इस्तेमाल कर रहा है उसका माइंड बिल्कुल फोकस होना चाहिए और उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो इसको इस्तेमाल कर सके, वरना इसके प्रोसेस में वो चीज़ तो खत्म हो जाएगी जिसको वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, और उसके साथ साथ वो शख्स भी खत्म हो जाएगा जिसने इसका इस्तेमाल करा है। अल्टीमेट नलीफायर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो पूरी की पूरी टाइमलाइंस को इरेज कर सकता है, वो यूनिवर्स नहीं बल्कि मल्टीवर्सेस को एक साथ मिटा सकता है। कॉमिक्स के अंदर हमने अल्टीमेट नलीफायर को इतने ज़्यादा लेवल पे इस्तेमाल होते हुए कभी देखा नहीं है, लेकिन हमने गैलेक्टस जैसे दूसरे बीइंग्स इसके बारे में सुना इतना है कि हमें इस बात पे विश्वास करना ही होगा, क्योंकि जब गैलेक्टस की इससे फट सकती है तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि इसके आगे कौन कैसे टिक पाएगा। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड हम अपनी लिस्ट को जो है रैप अप करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इस लिस्ट के अंदर हमने कुछ अलग और यूनिक वेपन्स को जिक्र करा है। मैं जानता हूं कि आपने इससे पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स की लिस्ट देखी होगी और उसमें आपको बार बार वही वेपन्स नजर आ रहे होंगे, जैसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट, कॉस्मिक क्यूब और इस तरह की दूसरी चीज़ें। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं आपको उन वेपन्स के बारे में बताऊं जो कि दूसरी लिस्ट में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाई जाए। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये लिस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप मुझे बताइएगा क्या ये मैंने लिस्ट बिल्कुल ठीक बनाई है, और अगर आप इस लिस्ट के अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर देखना पसंद करूंगा। और रही बात इन्फिनिटी गॉन्टलेट और दूसरे वेपन्स की जो इस लिस्ट में मिसिंग है, तो उनके ऊपर मैं एक अलग से फ्यूचर में वीडियो बनाने वाला हूँ जिसको हम टाइटल करेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट्स, क्योंकि मेरी नज़र में इन्फिनिटी स्टोन जो है वो एक वेपन से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं जिनको और दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो अलग बात है कि उनको वेपनाइज कर दिया गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और आपने मेरी यही वीडियो देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर इस तरह की टॉप 10 वीडियोस बनाता रहता हूँ जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की एक टाइमलाइन को फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर आप हमारे इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं और मार्वल कॉमिक्स का अनलिमिटेड पैकेज को एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पे मैं अपने चैनल की अपडेट शेयर करता ही रहता हूँ। लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और टॉप 10 वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।